about the origin of social differences. ये मैंने दोबारा से डिस्कस किया था. And today we are going to discuss overlapping and cross cutting. And next heading is politics of social divisions. तो ये दो टॉपिक मुझे आज डिस्कस करने हैं और इसको चैप्टर को we try to consolidate it today itself. So then overlapping social divisions take place when some okay children, social differences take place when overlap with another differences. The differences between the black and white became social divisions in USA because the blacks tend to poor, homeless and discriminated against. ये मैंने कल it was already discussed yesterday. Then in our country, Dalits tend to poor and landless. They often face discrimination and the injustice situations. So these are the some examples are given in your book itself. Then we are going to discuss if social differences cross cut another. It is difficult to pit one group of people against the other. ये क्या है? When we are not capable to find out which community is working against the आप कह सकते हैं certain community, तो we are not capable to find out the आप कह सकते हैं which communities are having the tension among the other communities. So when we are not having this much idea, so that particular approach is considered as a cross cutting. Cross cutting का मतलब यहाँ पर है, we can take example from the science. Have you read about food chain and food web? Food chain and food web. आपने पढ़ा है ना food chain and food web? हाँ, तो food chain में क्या होता है? There is a clear cut idea which animal is eating or which animal is hunt and eat that particular animal. और आमतौर से क्या है जो carnivorous जो animals हैं they are eating or they are killing किसको खाते हैं? Herbivorous को in general. तो it is a simple आप कह सकते हैं method or simple process you can identify which animal is hunting herbivorous, ठीक है ना? तो we are having the clear cut idea and human being is the top of that particular pyramid. यानी कि उसमें हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा जानवर किस जानवर को खा रहा है. There is no complex at all, ठीक है ना? लेकिन फूड वेब में क्या होता है? हम it is not easy to find out which animals hunt the another animal and how they are eating or which animals are eaten by some other animals. So when this complication is आप कह सकते हैं mixing with that particular food chain, so that will be considered as a food web. ठीक है ना? Web मतलब we are not capable to find out the perfect situation of perfect animals. किस किसको खा रहा है, कौन किसको खा रहा है, हमें जल्दी पता नहीं लग पाती है. तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक तरह से. कॉम्प्लेक्स इट मेक कॉम्प्लेक्स. तो ये क्या हो गया? फूड वेब हो गया. तो जैसे फूड वेब है, फूड चेन है, तो फूड चेन में क्या है? ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग मतलब हमें पता लग रही है जैसे ब्लैक और व्हाइट के बीच में हमें सीधा सीधा पता लग रही है. दलित एंड अदर कम्युनिटी के बारे में हमें सीधा सीधा पता लग रही है. तो ये क्या हो जाएगा? इट इज ओवरलैपिंग. एंड देन उसके बाद क्रॉस कटिंग में क्या है? इन सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर. It is difficult to pit one group of people against the other. पिट क्या होता है? हाँ, yes. सर पिट क्या होता है? पिट मतलब यानी कि we are involving with depth.
यानी कि हम इन्वॉल्व ऐसा ऐसा हो जाता है कि हमें पता नहीं लग पाती कौन सी कम्युनिटी किसके अगेंस्ट काम कर रही है, एक किसके अगेंस्ट काम कर रही है, किसके लिए गड्ढा खोद रही है, किसके लिए ज्यादा डेंजर क्रिएट कर रही है। दे आर स्टार्ट क्रिएटिंग अ डेंजर इन फ्रंट ऑफ सम कम्युनिटी। तो इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। यानी कि हम ये पता नहीं लगा पाते हैं, जैसे ब्लैक में व्हाइट में सीधा सीधा पता लग रही थी हमें, दलित में दूसरी कम्युनिटी में सीधा सीधा पता लग रही थी, लेकिन समटाइम these divisions are not find out very easy, ठीक है ना। तो we are having the, आप कह सकते हैं we are having the in very confused state, so we are not capable to find out which community is working under against आप कह सकते हैं A community is working for B, A community is also working against C, or A community is also working against D. So it is a very complex issue. Or D is working against A or not, it is not clearly mentioned in our mind. Or we cannot say that that particular community is against of each other. ऐसा भी नहीं बोल सकते। यानी कि कौन सी कम्युनिटी किसके लिए अगेंस्ट जा रही है, कौन सी कम्युनिटी किसके लिए अगेंस्ट काम कर रही है, तो we are not capable to find out all these differences in a easily manner, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, द क्रॉस कटिंग। कौन बोल रहा था, साधना, आई थिंक साधना वाज आस्किंग ना, साधना, यस, नाउ इट इज क्लियर टू यू और नॉट। फॉर एग्जांपल, एक another example is given in your book, I read out from your book. Consider the cases of Northern Ireland and the Netherlands. Both were predominantly Christians, यानी कि mainly they were belong to the Christian community. mainly मतलब नीदरलैंड में भी और आयरलैंड में भी जो दोनों है, both were belong to the Christian community, but divided in Catholics and Protestant. यानी कि एक कम्युनिटी है उनकी, यानी कि आयरलैंड में भी और नीदरलैंड में भी। तो क्या क्या कम्युनिटी बताइए इसमें, वन कॉमन कम्युनिटी इज क्रिश्चियनिटी इज वन कम्युनिटी, बट फर्दर दे डिवाइड देमसेल्व्स इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप में बांट लिया उन्होंने, बटे हुए हैं वो कौन कौन से, मैंने अभी नाम लिया था, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था। कैथोलिक्स मतलब, जो कैथोलिक्स के बारे में क्या बताया था मैंने, कोई बताएगा, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ कैथोलिक्स? जो कैथोलिक के बारे में मैंने एक मेन फीचर मैंने कल डिस्कस किया। हाँ, कैथोलिक बहुत पुअर होते थे और उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था। किसको? कैथोलिक्स को। तो मैंने एक मेन डिफरेंस बताया था, क्या डिफरेंस बताया था जरा बताओ। वो लोग क्रिश्चियंस की मतलब जो जीसस होते थे उनकी पूजा करते थे। हाँ, मेन, लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन। द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, मैंने क्या बताया था, दोज हु आर बिलोंग टू द कैथोलिक्स, तो दे वर ट्रेडिशनली बिलीव इन चर्च ऑथोरिटी, ट्रेडिशनली दे वर वेरी मच सपोर्टेड टुवर्ड्स द चर्च ऑथोरिटी, दैट वाज द मेन डिफरेंस। हमने डिस्कस किया था जो कैथोलिक्स, जो क्रिश्चियंस हैं, जो कैथोलिक अप्रोच के जो फॉलोअर्स हैं, तो दे ऑलवेज बिलीव whatever said by the church authority, so it is correct, there is no question at all, so they are blindly following all norms, all rules and regulations which are generally prescribed or prescribed by the church authority, ठीक है ना। तो they never think to oppose the church authority, ये मेन डिफरेंस है जो मैं बता रहा हूं अभी। यानी कि वो ट्रेडिशनली अप्रोच के हैं, they are not ready to change their ideology, whatever said by their religious gurus, और आप कह सकते फादर और पादरी, पादरी का मतलब यहाँ पर है जो फादर, जब प्रीस्ट होते हैं ना हिंदू में, तो वैसे ही उसको फादर भी बोल देते हैं, जो whatever said by the church authority, चर्च, और इनका जो कैथोलिक का जो हेड ऑफिस है वो है रोम में, तो whatever said by the Rome authority, रोम अथॉरिटी का मतलब रोम से जो डिसीजन आया on a particular issue or a religious issue, so they are following without any question, यानी कि बिना क्वेश्चन किए और बिना कुछ किए क्या है, they are ready to follow the instructions whatever passed by the church authority, and especially from the Rome, ठीक है ना। और ये क्या ट्रेडिशनली
ऑर्थोडॉक्सी, ऑर्थोडॉक्स का मतलब दे आर बिलीव इन ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है ना। ऑर्थोडॉक्सी, ऑर्थोडॉक्सी का मतलब समझ गए आप। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है दे बिलीव इन ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू चेंजेस। they are ready to follow, they are always ready to follow whatever instructions given or passed by the church authority without any questioning, without any question, without any objection. So this group was known as the Catholics group. अभी कैथोलिक का क्लियर हुआ तुम्हें भी साधना? हाँ, तो ये पॉइंट मेन है जो मैंने अभी बताया है। वो गरीब और अमीर वाला तो अलग है, वो तो अलग है। black will be was considered as a poor, and they were homeless, or Dalits also considered as a poor and without any cultivated land. वो तो पहले वाला में एग्जांपल था, इसमें एग्जांपल था ओवरलैपिंग में, दैट वाज ओवरलैपिंग एग्जांपल। लेकिन कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट में जो मैं अभी बता रहा हूँ ये वाला डिफरेंस है। प्रोटेस्टेंट कौन है? नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग प्रोटेस्टेंट का मतलब है दे आर नॉट ready or they are not accepting blindly. They are also accepting sometimes, but blindly they are not ready to accept whatever said by the church authority. If there is a, आप कह सकते हैं, some scope of objection, so they are always ready to object the wrong things. Whatever rules and regulations, whatever instructions are passed from the church authority, तो दे आर नॉट रेडी और दे आर नॉट एक्सेप्टिंग ब्लाइंडली। ये मतलब है, यानी कि ब्लाइंडली दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। इफ देयर इज ए, आप कह सकते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट टू रेज देयर वॉइस, तो दे ऑलवेज स्टार्ट रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द चर्च ऑथोरिटी। तो ये दोनों में डिफरेंस निकल के आया। मैंने कैथोलिक के बारे में बताया, यानी कि वो फॉलो करते हैं किसको फॉलो करते हैं? जो कैथोलिक चर्च ऑथोरिटी को फॉलो करते हैं, और हमेशा वो दे आर नॉट रेडी टू चेंज देयर आइडियोलॉजी। तो जो व्हाटएवर रिटन इन देयर होली बुक, बाइबल में जो भी लिखा है, तो वो वेदर इज सूटेड एट प्रेजेंट और नॉट, बट दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू adopt, or they are always try to accept all the things, whatever things are available in their holy books or whatever said by the church authority. ये that is the meaning of this particular, जो मैंने अभी आपका पूरा अप्रोच बताइए। प्रोटेस्टेंट क्या है? प्रोटेस्ट मैंने अभी कहा, प्रोटेस्ट का मतलब when you are trying to oppose something, यानी कि आप सॉरी बेटा, when you are start opposing the wrong policy, तो ये क्या है? You are going to protest against the established principles. तो जो ऐसा करेंगे, ऐसा कोई ग्रुप हो जाएगा, तो दैट ग्रुप आप कह सकते हैं सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड दे वर कंसीडर देमसेल्व्स एज ए प्रोटेस्टेंट। ठीक है ना, प्रोटेस्टेंट ग्रुप कहलाया वो। अभी क्लियर है तुम्हें ये सब? साधना, रितिका? यस सर। हाँ, तो मैं आगे बढ़ूं फिर नेक्स्ट। हाँ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल और दिया है। कैथोलिक, यू आर आल्सो मोर लाइकली टू बी पुअर। ये जो कैथोलिक के बारे में जो बोल रही थी साधना, एंड यू मे हैव सफर्ड ए पुअर एंड यू मे हैव सफर्ड ए हिस्ट्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अगर कैथोलिक्स हैं और कैथोलिक में ट्रेडिशनली दे आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ सोसाइटी व्हाटएवर सेड बाय द चर्च ऑथोरिटी, और हमेशा चर्च ऑथोरिटी क्या है? दे आर ट्राइंग टू क्रिएट द डिविजन अमंग द कॉमन पीपल। तो हमेशा जो जितने भी जो अभी आप देखेंगे जो रियल सेंस में दोज वर इन रियल सेंस दे आर रिलीजियस। इन रियल सेंस का मतलब ये मैं ये कहना नहीं चाह रहा है। एक तो होता है, एक ग्रुप होता है कि दे आर ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स द टेंपल साइड। दीस पीपल्स आर ऑलवेज मार्च टुवर्ड्स टेंपल साइड। Once they are making their worship and later on they think कि हमने तो भगवान के लिए, हमने भगवान से मांग लिया है, जो भी हमने गलत किया था उसको माफी मांग लिया है, and they feel free and they are again doing the same things। मतलब वो क्या करते हैं? जो स्मार्ट रहते हैं। स्मार्ट मतलब मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहे, but most of the time those who are literate persons, I'm those highly qualified persons, so only sake of name they are moving towards they are marching towards the temple side or worship place, but actually they are having the calculated mind, यानी कि calculated mind उनके पास है।
तो whenever there is a requirement of change, so they are ready to change themselves. But जो दूसरे लोगों को क्या है, हमेशा क्या होता है, जो ओल्ड ट्रेडिशंस को मानने वाले हैं वो आमतौर से क्या रहते हैं, पुअर रहते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहते हैं आमतौर से. So that's why they are not capable to raise the voice against the church authority because of the poverty, because of the illiteracy और आप कह सकते हैं less qualification among that particular society. So they are not capable to raise the questions against the established principles. They always having the fear in their mind. ठीक है ना? अब क्लियर हो रहा होगा ये जो मैंने बताया इस एग्जांपल से क्लियर हुआ है में? Yes sir. हाँ. Then जो प्रोटेस्टेंट है have had the conflicts in the Northern Ireland. Why they not do so in the Netherlands? यानी कि वो नीदरलैंड में सब कुछ नहीं कर रहे थे और आयरलैंड में सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं. ठीक है ना? तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस. फिर उसके बाद है ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट अ पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल डिवीजन एंड टेंशन. अगर मान लिया ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस है, ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के खिलाफ कुछ काम करते रहते हैं. ठीक है ना? तो वो क्या हो सकता है, समटाइम इट मे क्रिएट द वेरी डीप सोशल डिवीजन अमंग द सोसाइटी. सोसाइटी में डीप आपको रूट डिवीजन इज आप कह सकते हैं क्रिएटेड, यानी कि पूरी गहराई तक वो डिवीजन चला जाएगा. फॉर एग्जांपल इंडियन अगर सोसाइटी से आप एग्जांपल लें, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. यू कैन टेक सो मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी. दलित स्टिल आर नॉट ट्रीटेड वेल बाय द कम्युनिटी, बाय द अपर कास्ट पीपल. एंड जब वो फील करते हैं कि भाई we are Indians and we are also following the same religion, but still we are not getting the certain rights on an equal basis. तो वो they may feel that we are separate from others. जब ऐसी फीलिंग आ जाए, they will आप कैसे start thinking that we are separated from other society and we are not part of Hindu community, or we are sometimes they are thinking that we are not part of Indian, क्योंकि they are not treated well by the society. So when they are start thinking this way, so this creates the deep आप कह सकते हैं differences between the different communities, among the different communities. वो ऐसा सोचने लगे हम अलग हैं बिल्कुल सोसाइटी से और सोसाइटी हमारे लिए कुछ नहीं सोचती है. जब ऐसी अप्रोच आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये इज वेरी डेंजर फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि वो डिसयूनाइट द सोसाइटी. फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल है क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस आर इजियर टू अकोमोडेट. जो आप कह सकते हैं जो क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस आर इजियर टू अकोमोडेट, जैसे सोशल डिविजन्स ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन द मोस्ट ऑफ द कंट्री. यानी कि सोशल डिवीजन है, छोटे मोटे सोशल डिविजन्स, दे आर अवेलेबल एवरीवेयर. ईच एंड एवरी कंट्री हैविंग द सोशल डिफरेंसेस. ठीक है ना? यानी कि किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी रूप में, ठीक है ना, वो सोशल डिफरेंसेस हर जगह है. These social differences we have seen in USA, these social differences we have seen in UK, these social differences we have seen in India, these social differences we have seen in many other countries. यानी कि each and every country having the social differences. कुछ ना कुछ तो social difference होता है. For example, हमारे हाथ हैं तो all fingers having the different आप कह सकते हैं thickness, difference, length, तो they are not equal. यानी कि पूरी की पूरी जो हमारा हाथ है, हाथ की जो उंगलियां हैं, they are different from each other. यानी कि एक दूसरे से हाथ हमारा है लेकिन we are having the dissimilarity, यानी जो हम ये different है from each other. तो जैसे हम हाथ से एग्जांपल ले रहे हैं, यानी कि जितनी बार उंगलियां they are differently, आप कह सकते हैं look wise भी इनकी आप कह सकते हैं thickness wise और length wise they are different from each other. तो ये एक ही शरीर है पर दे आर डिफरेंटली आप कह सकते हैं उनका जो अपीयरेंस है दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो वैसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं आवर कंट्री में भी सेम, आवर सोसाइटी में भी सेम समटाइम, एंड समटाइम दे मे हैव सम डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट सोसाइटी पीपल. ठीक है ना? तो ये क्या हो सकता है, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर. कहीं भी, चाहे वो डेवलप कंट्री का एग्जांपल लें आप, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री का एग्जांपल ले सकते हैं. तो these differences are available, are associated everywhere in the world.
नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली यूएसए, नॉट ओनली यूके, एवरीवेयर दे आर अवेलेबल, ठीक है। तो उसके बाद बात है इन बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री विद मैनी कम्युनिटीज, जैसा आपने बेल्जियम के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ा था ना आपने। फिर उसके बाद है जर्मनी एंड स्वीडन, that was one highly homogeneous का मतलब है where most of the people belong to the similar ideology, similar race, similar religion, followers, तो that जहां पर एक जैसे मिलता है, एक जैसे मतलब कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, एक जैसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लोग मिलते हैं, एक जैसी सोशल अप्रोच के लोग मिलते हैं, तो दैट पर्टिकुलर सोसाइटी इज नोन एज होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब जो एक जैसी अप्रोच की हो, चाहे वो सोशल अप्रोच हो, चाहे वो रिलीजियस अप्रोच हो, चाहे वो रेशियल अप्रोच हो, ठीक है ना। तो जहां पर भी वैरायटी नहीं मिलती है, एंड दीज सोसाइटीज आर कंसीडर्ड एज होमोजेनियस सोसाइटी। और आजकल ये होमोजेनियस सोसाइटी ऑलमोस्ट एब्सेंट है थ्रूआउट द वर्ल्ड, दे आर नॉट अवेलेबल एट ऑल इन ट्रूली सेंस देयर इज सम डिफरेंसेस आर देयर, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, इतना है। लेकिन होमोजेनियस का मतलब है यानी कि जो एक जैसी अप्रोच, एक जैसा रिलीजियस प्रैक्टिस, एक जैसी सोसाइटी और एक जैसे पीपल हो, एक जैसे मतलब इन ऑल एस्पेक्ट, ठीक है ना। तो दे आर कंसीडर्ड होमोजेनियस। और माइग्रेंट्स जो होमोजेनियस, मान लिया सपोज इनिशियल स्टेज में दे वर होमोजेनियस, एक जैसे लोग थे, लेकिन जैसे माइग्रेंट्स, एक माइग्रेंट वर्ड आया, इट इज रिटन इन बोल्ड राइटिंग इन योर बुक, ठीक है ना। देख रहे होंगे दोनों होमोजेनियस का मतलब मैंने बताया सिमिलर आइडियोलॉजी, सिमिलर रेस, सिमिलर लैंग्वेज में भी देयर, सिमिलर आइडेंटिफिकेशन में भी देयर, तो दैट पर्टिकुलर जो सोसाइटी है इट इज नोन एज द होमोजेनियस सोसाइटी, जो एक जैसा मिले, डिफरेंस ना मिले उसमें। लेकिन ऐसा आजकल इम्पॉसिबल है, ईच एंड एवरी कंट्री हैविंग द सम डिफरेंसेस, सम आर हैविंग लिटिल डिफरेंस, सम आर हैविंग very big difference, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है big, यानी कि large differences are there और small differences are there, जिसमें difference is there, but difference are available everywhere, it is common आजकल nowadays, and it is because of the migrants समझ पा रहे हैं आप? migrants, अरे समझ पा रहे हैं migrants यस सर, इमिग्रेंट्स और हाँ टेल हाँ सर वो लोग जो दूसरी जगह से हमारी जगह आते हैं या हमारी जगह से किसी और जगह जाते हैं। यस पलायन करना। बिल्कुल ये साधना सही बोल रही है। when people are moving from our country to another country or at the same time some other people are moving towards our home country, so that migration is known as international migration। ये क्या हो गया, जो मैंने एग्जांपल किया है, some people are start moving from India to Pakistan, some people start moving from India to US, so this is, and some people coming from US to India, and some people coming from UK to India, so that particular movement of people between the countries, it is known as the international migration। क्या बोला जाएगा, इंटरनेशनल माइग्रेशन और वर्ल्ड वाइड माइग्रेशन you can say, but sometime within the country it is also going on, यानी कि within the country का मतलब जैसे Maharashtrian people, then sometimes they are coming in Rajasthan and they are doing some jobs or they are doing some services, so this is the internal migration। but when they are migrated from one place to another place, so we are accepting their traditions and culture sometimes, and they also start accepting our culture and आप कह सकते हैं इवन ड्रेस हैबिट है और ईटिंग हैबिट्स, ठीक है ना। तो एक्सचेंज से क्या हो गया, होमोजेनियस के बजाय क्या हो गया, हेटेरोजेनियस कम्युनिटी, यानी कि डिफरेंट कम्युनिटीज आर स्टार्ट सेटल डाउन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि डिफरेंट कम्युनिटीज आर स्टार्टिंग सेटल डाउन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो होमोजेनियस कम्युनिटी जो थी वो अभी क्या है, वो इट इज नॉट अवेलेबल एट ऑल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नाउडेज, एंड it is because of the nowadays migration is going on in a large scale, बहुत बड़े स्केल पे माइग्रेशन आजकल इधर से उधर होता रहता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द माइग्रेशन कहाँ होता है, अंडर डेवलपिंग नेशंस से डेवलपिंग नेशंस की तरफ, और डेवलपिंग नेशंस की तरफ से ज्यादातर डेवलप्ड नेशन की तरफ ज्यादा माइग्रेशन होता है। समटाइम some migrants also coming from the developed nation towards the developing nation sometime for the business point of view, ठीक है ना।
या अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए दे आर कमिंग सम टाइम, बट माइग्रेशन इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो अब क्या है डिफरेंस जो सोसाइटी है दे आर अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये इसको आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। तो उसके बाद है जो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आ जाएगा पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स, यानी कि सोशल डिविजन पॉलिटिक्स क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टी है तो दे आल्सो क्रिएटिंग द सोशल डिविजन अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर स्टार्ट सपोर्टिंग द पर्टिकुलर कम्युनिटी, some other political parties are start supporting on the basis of their religion, some political parties are also start dividing the people on the basis of their language, sometimes they are dividing the people on the basis of their food habits. So these all social differences or these all differences are created sometimes they are created by the different political parties or different political groups. और कभी-कभी क्या होता है when they are dividing the society in a different आप क्या करते हैं political groups or ideological groups, तो sometimes they are beneficial, sometimes they are beneficial. कैसे beneficial है? Because some political parties start dividing the communities in a different issues. So sometimes these communities are very much united. They are ready to work unitedly. वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और जो दूसरी कम्युनिटी है वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। If they are start or working for the welfare of the society, if they are start working for the welfare of the nation, so then it is very good indicator. But sometimes they are having the difference of opinion within the society, and they start they start fighting with each other on the name of god and goddesses, on the name of language, or sometimes they are start आप कह सकते हैं और they will start fighting on the basis of their food habit or dress material or language or religious sentiments. तो it may harm our unity. अगर मान लिया ऐसा है जब ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है due to the political divisions, तो it may create the difference between the different community, ठीक है ना। ये एक रॉन्ग चीज हो जाएगी इसमें, क्योंकि हमें वो डिवीजन की तरफ ले जाती है और वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ आप कह सकते हैं पर्टिकुलर कंट्री। फिर उसके बाद है थ्री में जो डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट मतलब मेन 3 पॉइंट्स आर कम अंडर दिस कैटेगरी। फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटकम्स डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल processive or taking this ideology, यानी कि कैसे वो सोच रहे हैं, how they are thinking about this ideology, जब वो उस बात को कैसे लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव लेंगे तो इट विल पॉजिटिव फॉर द कंट्री, if they take negatively तो it is very it's creating the harmful situation for the country. It depends on how the people accepting that particular division or that particular approach whatever created by the different political party. तो कैसा सोच रहे हैं वो उस बारे में, how they are taking that particular approach, तो it depends on people, it depends on society, how they are thinking about the divisions. अगर division को easy ले रहे हैं तो there is no divisions in our society. If they are taking very seriously this political division may create, क्या हो जाएगा, this political division may create the disunity among the society and ultimately among the countrymen. फिर उसके बाद सेकंड क्या है, मैं अभी इसको कंसोलिडेट कर दे रहा हूँ। जो सेकंड क्या है, that depends on how the political leaders raise the demands of any community. ये डिपेंड करता है कि रिलीजियस जो लीडर्स हैं how they are putting their demands, political जो पार्टी how they are putting their demands or their how they are raising their voice in front of the society, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो पॉजिटिव मैनर में लेते हैं तो इट विल क्रिएट द हार्मोनियल स्टेटस, यानी कि आपस में यूनिटी आ जाएगी इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द सोसाइटी। अगर वो उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट आप कह सकते हैं द यूनिटी ऑफ सोसाइटी, अगर ऐसा वो रिप्रेजेंट करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हाउ दे आर पुटिंग द डिमांड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी की डिमांड को कैसे पुट अप करते हैं, ठीक है ना। ये भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड थर्ड वन इज डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट द डिमांड ऑफ द डिफरेंट रिलीजन ग्रुप्स, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स, रिलीजन ग्रुप का मतलब डिफरेंट ग्रुप कह सकते हैं।
तो ये तीसरा क्या होगा, यानी कि उसके ऊपर गवर्नमेंट जो रूलिंग क्लास का मतलब जो पार्टी उस समय काम कर रही है, जो रूल कर रही है पूरे कंट्री को, तो हाउ दे आर रिएक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डिमांड। तो ये तीनों यानी कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे क्रिएट करती है उसमें। फिर उसके बाद दूसरा रिएक्शन आता है हाउ द जो रूलिंग क्लास है हाउ दे आर रिएक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर इशू, और सबसे पहले जो मैंने बताया था हाउ दे आर रिएक्टिंग बाय द सोसाइटी इसको कैसे लेती है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अगर नेगेटिवली दे आर टेकिंग ऑल द थिंग्स तो नेगेटिव रिजल्ट विल कम, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मैंने आज इसका चैप्टर को एंड कर दिया, और मैं मंडे से एक उसका आज मैं असाइनमेंट दूंगा, और इसका जो मेरे बिना कहे जो भी आपको ये इसमें ये रहता है ना इसका एक्सरसाइज, वो तो आपको पक्का मैं आपको आप कह के जा रहा हूँ या ना कह के जा रहा हूँ, तो वो आपको एक्सरसाइज